One thing that I want to point out here is we do not, and we clearly believe that women entrepreneurship is not any separate category. Entrepreneurship per se is gender agnostic. It's not about कि आप महिला हैं या पुरुष है business start करने के लिए, but clearly it is about key challenges that women entrepreneurs do face, especially from a social perspective in this ecosystem. And the idea is to address those not only for the women entrepreneurs but for the influencers as much, right? Who can then encourage women entrepreneurs to come forth and get engaged in meaningful. And this, how did this thought come about? We've done a study called a GEM study for women entrepreneurs to see what are the challenges. क्या-क्या कठिनाइयाँ हमने एक स्टडी किया था, एंड उसमें ये पता चला कि 6 शहरों में 6 cities में जहाँ स्टडी किया था 3,00,000 महिलाएं हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, women entrepreneurs who want to do their business and need encouragement, need a platform which can enable them. या तो सलाह के लिए, for inspiration or for some kind of education and things like that. So primarily, friends, Tide Free Shakti has got 2 aspects to it. One, it is an award where we want to recognize women entrepreneurs, but more importantly, from a Tide point of view, it is an enabling environment which we want to build in, so that we can go connect with them, educate them through the experiences of role models like Purvi who are with us and various other women entrepreneurs as well as men, but entrepreneurs first. From Tide's point of view, the enabling part जो है, that is more important, because that's what comes naturally to us. We believe that one award won't recognize everyone. There can be 10 awards tomorrow, no problem. We will connect with all of them. But the enabling bit is going to be important. The award, but however, is going to be across 3 categories. Micro, तो महिलाएं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख से 10 लाख की रेवेन्यू रेंज में, स्मॉल 10 लाख से 2 करोड़ तक, एंड मीडियम 2 करोड़ से 25 करोड़. हम इस टाइम छोटा रख रहे हैं, कीपिंग इट स्मॉल. इंडिया के अंदर नंबर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू टेक हियर यू गेट 500 इंडियंस, दैट्स नॉट द इशू. But the important thing is how do you service these numbers. So we want to start small but sure, very clearly. एक और बड़ी important चीज़ है, and the reason we are keeping it, we are trying to localize the message, Hindi, English, all of that, is because we believe that there is a lot of, we were in Aurangabad to kickstart Tide Free Shakti just about a weekend back, and there were 30 women entrepreneurs. 30 महिलाएं आई थी औरंगाबाद, and it was उनमें से एक मिसेस केरकर करके उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शी सेट अप, टर्नओवर ऑफ 15 crores. Okay, there's another lady who started with packaging, ready-made खाने का, टर्नओवर over 2 crores बना के. दो लेडीज थी जिन्होंने चपाटीज, रेडीमेड चपाटीज, डिफरेंट फ्लेवर्स की चपाटीज बना के 50 लाख का टर्नओवर, और बड़ा बढ़ने की पूरी, they've got 40 people with them and all of that. 30 such women entrepreneurs. It was just amazing. So धीरे-धीरे we are starting this movement. We will connect separately. This is the first of its activity on the Tide Free Shakti. Very, very happy to have Purvi to come spend her time. Thank you so much. And Purvi's profile with everybody, so I won't get into the formality, but all I can say is I think the most important thing is to have role models like Purvi who can inspire all of us to be able to, I won't steal the thunder of a title of the talk today, but I think it's so apt जब ये start करेंगे. हमें ये देखना है कि हम इनसे प्रभावित कैसे होते हैं, और मैं आपको सबको encourage करूँगा कि please आप questions पूछें. टाइप का यही है कि ये कोई स्टेज नहीं है, कोई मंच नहीं है. This is one of us. Please ask questions and get interactive. Also would like to introduce Prashant. Prashant is a charter member. He runs a very nice organization called Plug HR.
we will request Prashant to moderate and converse with Purvi. So Purvi, thank you for your time, and unki Maji bhi aayi aaj. It is so encouraging. Thank you, ma'am, for coming here, and we'll give it up to you to start. Thank you. Thank you. पहले तो मैं ये बोलूँगी कि मैं मेरी माता जी को लाई तो ज़रूर हूँ, मगर उसने गाड़ी में आते आते मुझे पूछा कि तुझे ये लोग ने टॉपिक दिया खुद की स्टोरी बताने के लिए, आर यू श्योर यू वांट टू गो एंड शो ऑफ, प्लेस योरसेल्फ ओवर देयर। अभी मैं क्या बताऊँ, ये मैं मन में लेके आई हूँ, तो आई होप आई कैन डिलीवर व्हाट आई वांट टू से विद कंप्लीट ह्यूमिलिटी, एंड आई होप दैट व्हाटएवर आई शेयर विद यू इज इंस्पिरेशनल एंड नॉट एट ऑल इन एनी वे showing off on my path. So first of all, I want to ask you all a question that as entrepreneurs and as women, आप लोगों ने कोई तकलीफ महसूस की है, कोई दुविधा आई है, कोई भी इधर है जिनको कोई दुविधा नहीं आई है तो हाथ उठाइए। हर एक को दुविधाएं आई है, हर एक को कोई प्रॉब्लम समस्या तो आई ही होगी, नहीं तो ये जीवन नहीं हो सकता है, बिजनेस नहीं हो सकता है, you cannot do it. So an entrepreneur, कोई डिक्शनरी में आप देखोगे तो उनका डेफिनेशन है प्रॉब्लम सॉल्विंग. An entrepreneur is one who takes the responsibility to solve problems. क्योंकि एक बार आपने जो बिजनेस चालू कर दिया तो बिजनेस आइडिया आपका है, इनिशियल मेहनत आपकी है, मगर हर रोज उसको आगे बढ़ाने में हर रोज कुछ न कुछ समस्या को आपको हल करना ही है. Impossible if you are not solving problems, then you are not an entrepreneur. So जब मैं ऑफिस में सुबह में जाती हूँ तो मैं ये नहीं सोचती हूँ कि काम क्या करना है, मैं ये सोचती हूँ कि जो भी मसला आएगा, जो भी प्रॉब्लम आएगी उसका मैं कैसे सुझाव करूँगी, कैसे उसका हल निकालूंगी. So that is what my objective is. Now I am a lawyer, but when I started my own law firm, I had to become an entrepreneur. जो खुद का प्रैक्टिस चालू करते हैं, खुद का जो प्रोफेशन चालू करना है, उसमें एक बड़ा भाग बिजनेस है. So you have to have your law knowledge, you have to be knowledgeable and equipped to practice law, but you also have to have business skills. So that is impossible to do unless you have both of those. दूसरा एक और मेरा एक सवाल है is there anybody over here who has found that it is impossible to solve a problem? You wouldn't be here, you would have given up. So that is also not there. There is no problem that cannot be solved. So you will face problems and you will find a solution for them, and that is the genesis, that is the basic characteristic of being an entrepreneur. If anybody disagrees with me, I want you all to interrupt me over here. So there is one more question that I want to ask is there any need to work? Many people ask me this question, that why do you need to work? Why do you need to go out and work so hard, and where's the need? Does your husband not support you? So many questions like this we face as women. The answer to this is we work because we have ideas, we work because we are driven to build something, and when we are working, as we are working, we face a million problems that a man may not face. For example, we wear multiple hats. In the morning you wake up as a mother, you send your children off to school, then you put on your hat as a cook in the house, quickly pack everybody's food, then you again go to work, wear another hat, so you're wearing multiple hats. जब घर पे आते हैं शाम को, तब भी आपका रोल खत्म नहीं होता है, मल्टीपल रोल्स हैं हमारे. तो आप घर आओगे तो प्रॉब्लली आपके हस्बैंड जाके टीवी के आगे बैठ के आराम करेंगे, और आप जल्दी जल्दी किचन में जाके खाना जो भी तैयार है उसको टेबल पे भी तो लगाना है, तो वो उसमें भी आप लगे रहेंगे. इससे you do not relax, or you cannot relax if you want to be a woman entrepreneur. You have to manage all your roles. You cannot. It's not a good idea to choose one against the other. Then you will not be doing justice to yourself. A woman is capable of multiple roles and should manage all those roles. And one thing is important. जब हम ये करते हैं तब कंप्लेन नहीं करते हैं, क्योंकि जो कंप्लेन करोगे तो यही सवाल आपको वापस पूछा जाएगा, मत करो काम, कौन बताता है आपको काम करने को, छोड़ दो, कम काम करो, कल जाना मत ऑफिस, आराम कर लेना. ये हो सकता है? Can you do that? ऐसे नहीं हो सकता है. इसलिए हम कंप्लेन भी नहीं करेंगे, बिकॉज वी वांट टू सक्सीड. कंप्लेन भी नहीं करना है, और कंप्लेन नहीं करेंगे और काम में जुटे रहेंगे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है. हम अपने आप को कुछ भी बना सकते हैं, जिंदगी में कुछ भी हो सकता है. आज हम छोटे बिजनेसमैन हैं, तो
कल हम बड़े बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, ये हर एक में काबिलियत है, डेफिनेटली दैट इज देयर। मेरी कहानी में ऐसा हुआ है, मैं एक छोटे टाउन में बड़ी हुई इन साउथ इंडिया। आई ग्रू अप इन अ स्मॉल टाउन, didn't have any knowledge of what an IIM or an IIT is when I was a teenager. नाम भी नहीं सुना था। पिताजी बहुत डांटते थे, न्यूज़पेपर पढ़ो क्योंकि मैं पढ़ती नहीं थी, कुछ नॉलेज भी नहीं था कि IIM और IIT जैसी जगह है। तो ऐसे जगह का ही मालूम नहीं है तो कैसे you have no hopes also of getting, you have no vision of getting into such university. So I had no grounding in that. Then after that what happened was that same girl after many years got an opportunity to study in an Ivy League university in America. So one, you are a teenager who has got no knowledge of the world, but you can be the same person who can get admission in an Ivy League university in America and get an education over there. So definitely कुछ भी हो सकता है. Keep going, because आगे जाके कुछ भी हो सकता है. If any of you have seen it, Anupam Kher has a monologue or he has a solo play that he does in which he tells his whole story in a drama called Kuch Bhi Ho Sakta Hai. And if you listen to his story also, you will realize that he started out as a small student in Kashmir, he's Kashmiri, and how he built his career and how he faced setbacks and he went forward. And he also proved that Kuch Bhi Ho Sakta Hai. One time he nearly faced bankruptcy. He owed the world 5 crores and 5 crores had a great value, and yet he bounced back from it and came forward. So how do you do it? The way to do it, or the way it has worked for me is that even though you have problems, you will see there will be many opportunities. In fact, very often the problem is the opportunity to grow. So I used to keep my eyes and ears open and take every opportunity available to me. But before I tell you about that, I'll tell you about the people who influenced my growth. One of them is my mother. And that's why I brought her here with me today. I don't take her with me whenever I go to give speeches. But today I wanted her to hear what she did to me as a child. Many times I resented it, but that has played a great role in shaping me today. हमको ऊटी में छुट्टियाँ 3 महीनों की पड़ती थी। ठंडी में 3 महीनों की छुट्टियाँ होती थी। 3 महीने के लिए हम क्या करें ऊटी में? ठंड बहुत होती थी। We were not going out of town for holidays. My parents were of modest means. इतने सारे पैसे नहीं थे कि हर साल चलो घूमने चले जाए 3 महीने के। तो हमको माता जी ने पहले तो ये सिखाया कि पैसे समझ के यूज़ करो, एकदम समझ के यूज़ करना, ये एक सिखाया। और फिर समय का उपयोग कैसे करना, ये हमको सबको सिखाया। हम 3 बहनें थी, तो तीनों को उसने एक रूल बताया कि सारा दिन आप लोग काम करेंगे। अभी काम क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। और शाम को जब बत्ती जलाने का टाइम होता है, जब सूरज डूब जाता है, उसके बाद आप किताब पढ़ सकते हैं। सारा दिन नो किताब। तो आज के पेरेंट्स बोलेंगे हाय ये तो क्या हुआ कि यू नॉट गोइंग टू लेट देम गेट नॉलेज। ऐसी बात नहीं थी, हमको उसने बहुत सारा काम सिखाया। एक चीज़ नहीं छोड़ी उसने, हमको पापड़ बनाना सिखाया, फ्राई-आर्म्स बनाना सिखाया, फ्लावर अरेंजमेंट सिखाया, पेंटिंग, कैंडल मेकिंग, चॉकलेट मेकिंग, टाइपिंग, हिंदी, अरबिक, जर्मन, फ्रेंच। एक चीज़ नहीं छोड़ी उसने। कुछ भी उनको मालूम होता है कि ये सीखने को चलो, एरिया सब चलो। और कोई बात तो ऐसी थी कि हमको मन नहीं होता था इतना सीखने को। भी अरबिक सीखने का हमको कोई इंटरेस्ट नहीं था। अलीफ बलीफ बेक पेटे किसको सीखना, खुद हमारे साथ चलती थी। तो हम चारों जन बैठ के साथ में टीचर के साथ पढ़ाई करते थे। ये और मेरी बड़ी बहन सीनियर क्लास में बैठते और मैं और मेरी छोटी बहन जूनियर क्लास में, मतलब पढ़ाई हम साथ में करते थे। इसलिए हमने जो भी मौका मिला हमें सीखने का ठान लिया। कभी तो 2 घंटे का रास्ता बहुत हमारे पीछे मेहनत की है। तब हमको कभी लगता था कि हमको कभी भी फ्री टाइम ऐसे नहीं मिलता है, मगर आज जो भी मैं सीखी हूँ उसका उपयोग मैं अभी भी कर सकती हूँ। अभी मैं पेंटिंग नहीं कर सकती, मगर कोई भी पेंटिंग की बात कर सकते हैं तो आई कैन प्रिटेंड दैट आई हैव लॉट ऑफ नॉलेज एंड टॉक अबाउट इट, which is also very useful, and I'll tell you about that when we talk about networking. I'll get back to that. So that was one major thing. And how was she influenced? She also was a very different type of background. She was born in Gujarat. She grew up in East Africa, married my father who was living in Kerala and lived for 40 years on tea estates in Ooty. इसलिए उनका भी एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड बहुत मिक्स था। उन सबसे भी हमको बहुत सीखने को मिला, क्योंकि हमने ये चारों जगह की कल्चर को देखने को मिला करीब से। केरला में लेने को मिला, कुएं से पानी सींचने को मिला। मैं आज मेरी बेटी को मैं बोलूँ कि कुएं से पानी निकलता है तो उससे तो मुझे नहीं याद है कि
होगा, देखा भी होगा, but we got all those opportunities also. Gardening, खुद के बाग रहते थे, खुद के वेजिटेबल गार्डन रहती थी, तो सब में हमको काम करने को मिला। जुस्सा था जीने का, वो सबसे हमको भी बहुत जीने का जुस्सा मिला। I don't know whether I'm using the correct Hindi words, please excuse me, but I'm trying to get the message across from my heart. Anyway, उसके बाद जैसे कि वो मेरे 0 to 21 years की इन्फ्लुएंस थी, उसके बाद में मुझे बहुत मौके मिले सीखने का। मैंने बम्बई में आके गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में से लॉ किया, फिर मैंने अलियंस फ्रांसेस से फ्रेंच सीखा, फिर मैं एक बार अमेरिका गई थी और मैंने उधर से फ़ोन किया मेरे हस्बैंड को कि यहाँ पे वो लोग प्लेन सिखाते, प्लेन उड़ाने के लिए सिखाते, मैं सीखूँ क्या? हाँ सीखो, उसके बारे में मैं बताऊँगी, प्लेन चलाना भी मैंने सीख लिया। ऐसे कि मैंने लाइसेंस नहीं लिया, बट आई गॉट द एक्सपीरियंस ऑफ दैट। फिर 30 साल की उम्र में मैंने ठान लिया कि मुझे भरतनाट्यम सीखना है। छोटे छोटे बच्चे थे तो मैं बच्चों को भी लेके क्लास में जाती थी। छोटी बच्ची को बाजू वाले क्लास में डाल दिया और 2 साल का बेटा आजू बाजू में खेलता था और मैं डांसिंग सीखती थी। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मैंने बचपन में देखा कि जो मौका मिले वो सीख लो, इसलिए मैं जैसे कि मेरी एज बढ़ती गई फिर भी मैं सीखने का मैंने जारी रखा। फिर बच्चे छोटे थे तो मुझे प्रैक्टिस छोड़नी पड़ी, तो टाइम से क्या करें? टाइम इज जस्ट हैंगिंग ऑन योर हैंड्स। और ट्रेनिंग ऐसी मिली थी कि नो फालतू टाइम टू वेस्ट बचपन में, यू कैन नॉट वेस्ट टाइम। इसलिए हम दोपहर में सो भी नहीं पाते थे। आई कुडंट स्लीप, इट वाज कंडीशनिंग। तो व्हाट यू डू? तो मैंने NIT में ज्वाइन कर लिया, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख लिया, SQL डेटाबेस क्रिएशन सीख लिया। क्या उसका फायदा होने वाला है, कुछ करियर बनने वाला है? कुछ नहीं सोचा, बस सीखती गई ऐसे। फिर उसके बाद मैंने फिर ये सब क्या हुआ कि ऑल दिस नाउ आई अंडरस्टैंड इज लिबरल एजुकेशन। और पूरी दुनिया में ये एक ऐसा मूवमेंट चालू हुआ है कि सबको जो सीखने just let everybody have the opportunity to learn for education sake, just for the sake of learning. Don't give them education कि भाई तुम अभी डॉक्टर ही बनोगे या ये ही बनोगे, जो अपनी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में है अभी। ये 12th स्टैंडर्ड से या 10th स्टैंडर्ड से आप चूज कर लेते हैं कि आपकी फील्ड आगे जाके क्या होगी। इससे हम क्या करते हैं कि सबके माइंड को हम कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, we're limiting the growth of the people. So the movement all over the world is for liberal education, and that is what I got the opportunity of it, but didn't realize that what I'm undergoing is liberal education. So that is what we all need to do for ourselves and our children, is keep our minds open and give them opportunities to learn small things also. जैसे कि मेहंदी के क्लास है तो भी भर लो, it's still an art form. रंगोली के क्लास है, आरती मेकिंग, whatever, but keep learning, it keeps it very good. फिर पढ़ाई के टाइम में उठी में मुझे 3 और व्यक्तियों ने बहुत ही इन्फ्लुएंस किया। मेरे फादर का भी बहुत इन्फ्लुएंस था क्योंकि he was educated, he studied in Podar College just next door, he got his commerce education there. That influenced us directly and indirectly because he encouraged my mother to learn English. She had no knowledge of English. He would call the teacher home. She was an English lady, she would come home to learn English. He made her learn to drive a car, she would drive everywhere. So that again had a direct and indirect influence on us. So education is very important. And the other people who influenced us were 3 educationists in the team. One was my school teacher. I'm dyslexic when it comes to numbers. मुझे numbers देखो और मुझे कुछ होने लगता है, I cannot manage it. तो उसने मुझे मैथ सिखा और मैथ्स में भी फर्स्ट क्लास मार्क्स she helped me get in the 10th standard. तो उसकी ऐसी वो जो डेडिकेशन था कि ये स्टूडेंट में से मैं कुछ निकाल सकूंगी, तो उसका नाम इंदु अनंतचारी था। फिर दूसरी एक औरत थी जो उसका नाम था मिस आदि सेशिया। उसने ऊटी में पहली महिला के लिए कॉलेज चालू की थी। पहले सिर्फ एक कॉलेज थी, वो को एजुकेशन कॉलेज, तो उसमें बहुत दंगा और स्टूडेंट यूनियन का मारपीट ये सब रहता था। तो शायद मैं वो ही कॉलेज होती तो शायद मेरी एजुकेशन में कुछ बाधा आ जाती। बट लकीली शी हैड स्टार्टेड दिस कॉलेज इन व्हिच माय फादर आल्सो वाज अ founder trustee. So we got to study over there. Very small college, only 250 people. And the principal of the college was Mrs. Lily Nair. These 2 ladies were amazing. They would give you opportunities to do so many things. First of all, because it is a small college, you get so many opportunities. I got the opportunity to be the student union leader. Bombay ki college में student union leader बनना means it's a big thing. And
very small chance of getting it. But small town education and a small town college gave us more. So we got leadership training because of that. We got opportunities to participate in debates, in public speaking, all those things. In fact, कभी-कभी तो संख्या कम होती थी तो वो हमको कैरल सिंगिंग में भी डाल देती थी। जब मैं यहाँ कैरल सिंगिंग करूँ तो आप लोग निकल जाएंगे, इसलिए काबिलियत नहीं है मगर मौका फिर भी मिल जाता था। So it was interesting. कैरल सिंगिंग भी किया और श्री रामकृष्ण परमहंस पे हमने स्पीच भी दिया, वो सब उधर करने को मिलता था। बम्बई की कॉलेज में डोंट सी दैट हैपनिंग बिकॉज द नंबर्स आर टू लार्ज. After marriage, my husband was a very important person in my life. When I got engaged, my mother, she was very eager that my married life should be very calm, peaceful and without any disruptions. So she goes to my mother-in-law and says very nicely, आपको चाहिए तो पूर्वी को कॉलेज से उठा लो. तब मैं सेकेंड ईयर लॉ कॉलेज में थी, LLB का सेकेंड ईयर कर रही थी. अभी उनके मन में था कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, उनकी बेटी का मैरिड लाइफ अच्छा बना रहे, इसलिए उसका एजुकेशन स्टॉप कर दी थी. जब मैंने हस्बैंड ने सुना, उसने उनकी माँ से सुना, मेरी सास से सुना, तब उसने मुझे पूछा ये क्या हो रहा है, तुझे पढ़ना नहीं है, तुझे छोड़ देना है, यू नो, बिकॉज यू वाज स्टडीइंग, आई वाज इंटरेस्टेड इन ये सब. तो ऐसा भी होता है कि माँ को ऐसे लगता है कि कुछ मैं अच्छा करने जा रही हूँ मगर इट मे नॉट बी द बेस्ट. लकीली माय हस्बैंड वाज वेरी फर्म, ही सेड नहीं, एजुकेशन को पूरा करना ही है एंड ही वुड सपोर्ट मी फॉर दैट. तो सुबह 6 बजे उठ के खाना वाना बना के बस लेके कॉलेज भी जाते थे आफ्टर गेटिंग मैरिड. पेरेंट्स इन लॉ बहुत वेरी ओल्ड और बीमार भी थे मगर फिर भी बहुत टॉलरेंट थे. क्योंकि आई गिव यू वन एग्जांपल. एक बार मैं कॉलेज से वापस आई, सुबह 7 से 10 कॉलेज था, 11 बजे मैं वापस आई तो मेरे फ्लैट के बाहर बहुत लोग इकट्ठे हुए थे और एक खिड़की से थोड़ा थोड़ा धुआं आ रहा था हमारे घर से. तो मैंने पूछा भाई क्या हो गया, तो सबने बोला कि गैस पे दूध का चूल्हा चालू था और दूध सब जल गया और उधर से धुआं आया, इसलिए हमको दरवाजा तोड़ना पड़ा. मैं भूल गई, गैस पे दूध रख के कॉलेज चली गई थी, घर पे और कोई नहीं था. फिर भी मेरे सास ससुर ने मुझे एक बार भी नहीं डांटा है. So I have been very lucky. So opportunities भी हैं, आजू बाजू के लोग भी अच्छे रहते हैं तो you can really move forward. So that and they were old, you know, I mean they were 75 years old, so they were of that age group where they expected the daughter-in-law to be a daughter-in-law. But because they were adapting to changing times and my husband was able to explain to them the importance of education, they didn't get upset, but they could have. So it was I was very lucky. Anyway, LLB तो खत्म हो गया. अभी मैं 23 साल की थी और मेरे क्लासमेट सब बहुत लोग मेरे फ्रेंड्स में से अब्रॉड जा रहे थे LLM करने के लिए. मन में तो था कि मैं भी जाऊँ मगर नहीं जा पाती थी. तो we were also just starting out in life. I was not in a well-to-do family. We were just starting out. Parents भी aged थे वगैरह. इसलिए मैंने एक बार बोला मतलब कि ये अच्छा है सब लोग कर रहे हैं, मगर आगे तो कुछ उम्मीद नहीं रखी थी जाने की. बच्चे बड़े हुए तब तक तो मैं ये सब कंप्यूटर करती थी, थोड़ा लीगल प्रैक्टिस करती थी और टाइम आगे निकलने लगा. फिर मेरी बेटी 10th में आई और तब तक मेरी एज 40 हो चुकी थी. तब मेरे हस्बैंड ने बोला बस अभी तू तेरा एप्लीकेशन डाल और अमेरिका जा पढ़ने के लिए. At the age of 40, I went back to study. But that was also possible because all along I was keeping in education. So I went to study. तब मैंने एक गलती की. मैंने एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट को कांटेक्ट किया और मैंने उसको मेरी प्रोफाइल दिखाई और मैंने पूछा कि मैं क्या कर सकती हूँ, कहाँ मैं पढ़ने जा सकती हूँ, मुझे LLM करना है. उससे मेरी प्रोफाइल देख के बोला मुझे एडमिशन नहीं मिला, प्रोफाइल एकदम बेकार, कुछ नहीं मिला. एक बार तो मैंने सोचा कि बस छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला. फिर बोला कि नहीं ऐसे तो नहीं छोड़ सकते. तो ठीक है, हार्वर्ड ये सब बड़ी कॉलेज में एप्लीकेशन नहीं डालेंगे, सेकेंड लेवल में डालेंगे, जहाँ मिलेगा वहाँ चले जाएंगे. इसलिए 16 कॉलेज में मैंने एप्लीकेशन डाला और 16 में से अबाउट 12 में मुझको एडमिशन मिला. उसमें से यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया एक थी, वो भी आईवी लीग कॉलेज है और उसमें मैंने किया. इससे एक सीख मिलती है जो हम सीख के बारे में बाद में बात करेंगे. फिर कोई आपको बोले कि ये नहीं हो सकता, कि वो नहीं हो सकता है, डोंट लिसन, डोंट बिलीव दैट इज द ट्रूथ. टेक दैट ओपिनियन, रीएनालाइज योरसेल्फ, वापस अपने आप को वापस एक बार परख लो और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करो. क्योंकि ओपिनियन तो देने वाले बहुत हैं, सबके ओपिनियन सही भी नहीं हो सकते. विच आई लर्न द हार्ड वे. शायद हार्वर्ड में एडमिशन मांगा होता तो मिल जाता था, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता था.
आई डिडंट नो। सो एनीवे वो सब हो गया। फिर उसके बाद recently about 6 years ago the fourth person, I mean the fourth type of person in my life who had a great influence is a spiritual and a life guru called Guru Parthasarathy। उससे मुझे ये सब सीखने को मिला कि आगे बढ़ते जाओ और मन की शांति को भी आप बढ़ा